Hello everyone, welcome back to my channel Swedeep Academy. As you know, we have already completed the first chapter of class 10th Geography, Resources and Development. In today's video, we are going to start the second chapter, that is Forest and Wildlife Resources. But before diving into the main discussion, we will begin with a quick map activity. And this map work will help you a lot in this process. Every day you learn some important locations, and I think that will really support your understanding of social science in the long run. So let's get started. So as you can see here, that is you have to locate Kaziranga National Park. Go through the physiographic map of India and try to locate Kaziranga National Park to which state this national park belongs. Okay. India रो physiographic map देखो and Kaziranga National Park को locate करिया पे try करो जे ये को state को belongs करे, and with that comment section को जाओ and मते reply दियो जे Kaziranga National Park को state को belongs करे. Okay, so comment me. So let's start. Forest and wildlife resources. In this chapter, we are going to discuss about importance of forest and wildlife resources, and then we will discuss why do we need to conserve forest and wildlife resources. Then we will discuss forest and wildlife conservation milestone, or you can say historical background. केबे स्टार्ट हेतला केमती कौन कौन सब स्टेप नेतले ए विषय रे हम डिस्कस करिबा. Then we will discuss type and distribution of forest and wildlife resources, and at last we will discuss community, that is the role of community in the conservation of forest and wildlife resources. So let's start with the first one, that is importance of forest. You know that we share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan, elephants to blue whales. This entire habitat that we live has immense biodiversity. कौन कहा जाउची? The entire habitat that we live. Okay, here the entire habitat means earth. इट entire habitat माने कहा को कहा जाइछि ना earth को कहा जाइछि. आमे जो हेबिटाट रे एंटायर हेबिटाट आमे बसवास करूचे सेथरा में बहुत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आमे देखिबा को पाउ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठु आरंभ करी बैक्टीरिया पर्यंत, लिचेंस ठु आरंभ करी banyan tree पर्यंत, एलिफेंट्स ठु आरंभ करी ब्लू व्हेल्स पर्यंत वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग्स आम सहबी ए प्लैनेट रे बाय हेबिटाट रे बसवास करंती. सो व्हाट डू मीन बाय हेबिटाट? हेबिटाट माने कोन? हेबिटाट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इट एज जे ये होची नेचुरल होम और प्लेस where a particular plant or animal or any living things live. जमते आमे एग्जांपल नहीं परिबा fish lives in water, so आमे कहि परिबा ponds, rivers, oceans ए सब होची fish पई कोन ना habitat. जमते fish रा habitat होची ponds, river and ocean, ठीक से बोली पूरा whole living things. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स कथा जदि आमे कहिबा अर्थ में जहाँ भी लिविंग थिंग्स देखिबा को पाउचे व्हाट एवर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया और banyan tree, lichens और व्हाट एवर, जदि आमे ए सब लिविंग थिंग्स मानक पई जदि गोटे बेस्ट हैबिटेट कहिबा देन यू नो दैट इज अर्थ. आमे ए भली काहे को? बिकॉज़ इफ यू कंपेयर अर्थ विथ अदर प्लैनेट्स देन अदर प्लैनेट रे लाइफ पॉसिबल नो, केवल अर्थ रे ही लाइफ पॉसिबल. दैट्स व्हाई आमे अर्थ को गोटे बिग हैबिटेट बोली कहूचे. ओके, बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स आमे कहि परिबा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स दैट इज वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. आमे जानिचा म अर्थ रे विभिन्न वेराइटी आमे लिविंग थिंग्स पाउचे, whether that is plants or animal or microorganism. प्रत्येक क्षेत्र रे विविधता रे भारत पूरा भरपूर, and that's why आमे एभली को that is biodiversity. So we human along with all living organisms form a complex wave of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. कौन कहा जाउची ना
वी ह्यूमन एलॉन्ग विथ ऑल ऑर्गेनिज्म ए जो मु कहली हैबिटेट ए हैबिटेट रे केवल जे नुह आमे ह्यूमन सहित डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ए समस्त मिसिक गोटे कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट करती तो ये आम बुझा ट्राए करवा व्हाट डू मीन बाय इकोसिस्टम बा जहाँ को आम कहे इकोलॉजिकल सिस्टम ए कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इकोसिस्टम कौन ना ये हूँ गोटे प्लेस जो प्लेस रे देखा जाउथुवा डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन करती ना परस्पर सह इंटराक्ट भी करती एंड परस्पर ऊपर संपूर्ण डिपेंडेंट एंड ये डिपेंडेंट रही से सहावस्थान करि पारंती बंची पारंती ए जो सिस्टम बा ए जो प्लेस को आम कहू कौन ना इकोसिस्टम तो आम पूरा आर्थ को भी कौन कहि परिबा ना गोटे कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोसिस्टम कहि परिबा एंड जो आर्थ रे की बहुत गुड़ा लिविंग थिंग्स भी अच्छी एंड बहुत गुड़ा नॉन लिविंग थिंग्स भी अच्छी एंड आमे हमर निजर ओन एक्जिस्टेंस पई आमे बा आमे कहि पारे ह्यूमन तार निजर एक्जिस्टेंस पई केवल जे नुहे आमे इकोसिस्टम रो गोटे पार्ट केवल जे नुह आमे हैबिटेट रो गोटे पार्ट आमे आम निजर एक्जिस्टेंस पई आमे संपूर्ण ए हैबिटेट एंड ए इकोसिस्टम ऊपर कोन ना डिपेंडेंट मध्य केमती आमे एग्जांपल नेबा एज यू कैन सी हियर प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये कोथरे हमको हेल्प करते ना क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ आमे जो निश्वास प्रश्वास आम ब्रीदिंग पे आवश्यकता जो एयर रो क्वालिटी को इंप्रूव करिबारे माने बहुत हेल्प करती जदि से आम नॉन लिविंग थिंग्स कथा कहबा आमे आम इकोसिस्टम रे देखुथबा नॉन लिविंग थिंग्स कथा जदि कहबा वाटर कंसीडर करबा सॉइल कंसीडर करबा देन ये बहुत हेल्प करती फूड प्रोडक्शन रे तो एही आर्थ को एज ए जदि आम इकोसिस्टम माने कंसीडर करबा देन in this ecosystem whatever the living things and non living things we are getting both are interdependent to each other and if we talk about specially human then for our own existence we are completely depending on this ecosystem ए ecosystem ऊपर हमें संपूर्ण डिपेंडेंट तो इकोसिस्टम कहले एथिरे फॉरेस्ट भी जाए एथिरे वाइल्ड लाइफ भी जाए तो एठो में बुझी पड़थुवा कौन इंपोर्टेंस फॉरेस्ट आम पई कौन इंपोर्टेंट ओके सो लेट्स सी इन दिस इकोसिस्टम फॉरेस्ट प्ले ए वेरी की रोल ए इकोसिस्टम रे फॉरेस्ट बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कहीं ना फॉरेस्ट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन व्हिच ऑल अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंड फॉरेस्ट जदि कथा कहिबा फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कहीं इंपोर्टेंट रोल प्ले करे ना कहीं ना आम फॉरेस्ट को कौन कहू ना प्राइमरी प्रोड्यूसर को कहीं प्राइमरी प्रोड्यूसर ना जहाँ भी लिविंग थिंग्स आम आम इकोसिस्टम देखा पाऊ से माने निजर निजर सर्वाइवल डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो से माने कहा ऊपर डिपेंडेंट ना फॉरेस्ट ऊपर डिपेंडेंट दैट्स व्हाई आम फॉरेस्ट को प्राइमरी प्रोड्यूसर को एंड से आम फॉरेस्ट को जे इकोलॉजिकल सिस्टम रे गोटे मेजर रोल प्ले करे सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट तो एठो हमें बुझी पारथुबो जे फॉरेस्ट केते इंपोर्टेंस ओके कौन लिखा जाइछि ना हेल्दी फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइडिंग न्यूमरस बेनिफिट्स टू वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन पॉपुलेशन अलाइक आमे ह्यूमन हो आम कथा हो कि वाइल्ड लाइफ कथा हो बोथ को पाई गोटे हेल्दी फॉरेस्ट बहुत इंपोर्टेंट ओके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करिया पई फॉरेस्ट रिसोर्सेस बहुत ही आवश्यक सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ना द इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट नाउ लेट्स सी द फ्लोरा एंड फॉना इन इंडिया नॉट दैट मच इंपोर्टेंट ए पार्ट जस्ट आम खाली गोटे बर्ड आई व्यू रखा क्या ऊपर जे भारत रे केमती वेराइटी ऑफ प्लांट्स वेराइटी ऑफ एनिमल्स आम देखा पाऊ सो लेट्स सी if you look around you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in our area in fact India is one of the world's richest countries in terms of its vast area of biological diversity जदि भारत को आमे वर्ल्ड अदर कंट्रीज सहित कंपेयर करिबा देन अन्य कंट्री भली बा अन्य रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंट्रीज मानक भितरु भारत गोटे अन्यतम वर्ल्ड देखा जाउतवा रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंट्रीज मानक मध्यरु भारत भी गोटे अन्यतम काहेकि ना भारत रो विभिन्न स्थान को तमे जदि जीव तमे जदि डेजर्ट को जीव डेजर्ट रे तमे वेराइटी ऑफ यूनिक प्लांट्स एनिमल्स पाइबो जोड़ा कि डेजर्ट रे देखा जाए इफ यू गो टू द हिमालयन रीजन अगेन डिफरेंट इफ यू गो टू द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट डिफरेंट इफ यू गो टू द आइलैंड्स अगेन डिफरेंट इफ यू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगेन डिफरेंट कहबार अर्थ होची भारत रो फिजियोग्राफिक डिवीजन जेमती बहुत भास्ट बा हमें कहि परिबे वेराइटी रे भरपूर ठीक से भाई अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी आम वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स भी आम देखा पाऊ एंड सबुठू आश्चर्यर कथा
आमे जति फ्लोरा एंड फौना एजाएं डिस्कवर करिचे तार पाखापाखि आहुरी 2 रु 3 गुणा फ्लोरा एंड फौना एबे भी स्टिल आज जाए भी आमे डिस्कवर करिना हो एठू इमेजिन करि पारथो जे भारत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रे केते रिच ओके एंड यू नो द इंपोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेस जस्ट पूर्व स्लाइड आम डिस्कस कले दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना so well integrated in our daily life that we take this for granted. This line is very important. This diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take this for granted. What it means? आमे फ्लोरा फाना सहित एते acquainted हे गलेनी आमे डेली लाइफ रे आ सहित एते संश्लिष्ट हे गलेनी एते इंटीग्रेटेड हे गलेनी जे आपको आमे बहुत सहज रे नहीं जाऊ मीन्स आर इंपोर्टेंस आमे बुझी पारो ना हो एंड जोथि पई आमे एनवायरनमेंट प्रति बा आम इकोसिस्टम रे थिबा फ्लोरा एंड फौना प्रति आमे सेतिकी सेंसिटिव नुह आमे सेतिकी जुडिशियसली रिसोर्सेस गुडी को आमे कोन करूने ना व्यवहार करूने दैट्स व्हाई इन आवर एनवायरनमेंट आमे बहुत वेराइटी आमे प्रॉब्लम देखुचे रिगार्डिंग व्हाट ना एनवायरनमेंट और ब्ला 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 दैट इज as you can see they are under a great stress mainly due to the intensivity to our insensitivity to our environment जेहेतु आमे हमर environment प्रति sensitive नुह जेहेतु आमे environment प्रति सेतिके conscious नुह एंड आमे सब जिंस को जस्ट कोन कर दैचे माने बहुत सहज रे जेहेतु नहीं जाइचे आमे फ्लोरा फौना रो ए डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना रो हमको इंपोर्टेंस बुझा पड़ेनी एंड आमे ताको बहुत केयरलेसली आमे यूज करू रेस्पोंसिबल वे रे आमे यूज करू ना हो एठो आमे बुझिले जे भारत केते बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रे केते आगरे बा केते रिच एंड ताहा सहित आमे काहे की बा बिकॉज ऑफ सम रीजन आमे हम एनवायरनमेंट प्रति बा आमे हमर फ्लोरा एंड फौना प्रति सेंसिटिव नुह एंड दैट्स लीड टू व्हाट ना थ्रेट्स टू द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस जोथि पे कोन क्रिएट हुए ना हमर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस प्रति कोन क्रिएट हेलानी ना थ्रेट्स क्रिएट हेलानी you know that is deforestation habitat loss means जेमति कहली pond को माने फिश रहिया पय pond होची सुइटेबल बट आमे pond को सफा करिवा फॉरेस्ट आमे डिफरेंट वन्य जंतु देखिबा को पाउछ आमे फॉरेस्ट को सफा करिवा से वन्य जंतु क्वाडे जिवे त फॉरेस्ट को जते सफा करछे ताको आमे कहि पारे आमे कहार ना वन्य जंतु मानकर आमे नेचुरल हैबिटेट को आमे कोन करछे ना लॉस करछे आमे डिफोरेस्टेशन आमे करछे त आ द्वारा ऑब्वियसली कहा प्रति थ्रेट आछे ना फॉरेस्ट प्रति एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस प्रति एंड दैट्स व्हाई दैट लीड्स टू व्हाट एथि जोगु कोन हबो ना एथि पय हमर इकोलॉजिकल इंबैलेंस हबो ओके कार्बन एमिशन बहुत बढ़िबो बा अदर इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हेबार चांसेस अछि सो एजाए आम जहाँ भी डिस्कस कले ए सबुर आम बुझी पार्थुबा आमर फॉरेस्ट रिसोर्सेस रो बा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस रो आम लाइफ रे केते इंपोर्टेंस ओके एंड एठो आम बुझी परिबा जे हमको काहे कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस आम बुझिले जे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस आम पई बहुत ही आवश्यक बहुत ही इंपोर्टेंट बिकॉज आमे हमर निजर एक्जिस्टेंस पई आमे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस ऊपर संपूर्ण डिपेंड करू बट दैट इज अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस बिकॉज ऑफ आवर इरेशनल बिहेवियर टुवर्ड्स दैट ए रिसोर्सेस गुडी को कोथरे अछंदी ना थ्रेट जोन रे अछंदी एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली वी नीड व्हाट ना कंजर्वेशन मेजर ए सब काम कोन करबार अछि कंजर्व करबार अछि सो लेट्स सी ए पार्ट में डिस्कस करबा दैट इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व forest and wildlife resources. As you can see here, first one, conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? A part में mainly a point ऊपर focus करिबा that is why do we need to conserve our forest and wildlife. First, conservation preserve ecological biodiversity and our life support system. First, कंजर्वेशन ए रिसोर्सेस को कंजर्व करबा द्वारा इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें मेंटेन करि परिबा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व करि परिबा एंड विथ दैट फॉर आवर एक्जिस्टेंस द लाइफ सपोर्ट सिस्टम आमर एक्जिस्टेंस पाई जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम दरकार लाइक वाटर एयर एंड सॉइल रो क्वालिटी को भी प्रिजर्व करिबारे हमको हेल्प करिवो कोन ना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस सेकंड it also preserve the genetic diversity of plants and animal for better growth of species and breeding. What do you mean by the genetic diversity of plants and animal? किसी example नवा
जेमती कि आमे वर्तमान भी एग्रीकल्चर रे आमे हम ट्रेडिशनल क्रॉप को ही आमे ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ क्रॉप को ही आमे बहुत कौन करू ना व्यवहार करू जदि फिशरी कथा कहबा देन भारत रे जो देखा जाए वेराइटी ऑफ फिश से एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करिवारे आमे बहुत যত্নবান বা তার প্রতি আমি বহুত ধ্যান দেউ কইবার অর্থ হচ্ছে ভারতের যে ভ্যারাইটির ফিশ দেখা যায় বা ভারতের যে ভ্যারাইটির ক্রপস দেখা যায় বা ভারতের যে ভ্যারাইটির ডিফরেন্ট ফ্লোরা এন্ড ফনা দেখা যায় আকু আমি কইপারিবা জেনেটিক ডাইভার্সিটি প্রত্যেক প্লান্ট এন্ড এনিমলস রে भी बहुत प्रकार कोन थाय ना जेनेटिक डाइवर्सिटी थाय तो से जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी आमे मेंटेन करिबा पई प्रिजर्व करिया पई हमु कोन दरकार ना वी नीड कंजर्वेशन मेजर सपोज मु जेंते एग्जांपल देबी आमे सपोज नबा राइस रो वेराइटी अछि विभिन्न टाइप रो राइस अछि सेमते आमे जदी काउ कथा कहबा काउ रो भी डिफरेंट स्पेसीज अछि एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउस को भी हम कोन करबा दरकार ना प्रिजर्व करबा दरकार एंड ये केते बेले पॉसिबल होबा ना जेते बेले आमे कंजर्व करिया पे ट्राई करबा ए सब रिसोर्सेज को ओके दैट्स व्हाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपोर्टेंट नेक्स्ट it gives us resources like wood medicine fruits honey and come from forest कौन उपादेय होता मु न कहबाटा बेटर यू नो दैट फॉरेस्ट रो हमें कौन सब रिसोर्सेज पाउछ मेडिसिन जदि खास करी हमें फोकस करबा मेडिसिन मैक्सिमम मेडिसिन प्लांट्स बा मैक्सिमम मेडिसिन पई जहाँ भी हमको सब्सटेंस सब जहाँ भी दरकार ए सब हमको मिले कोठु ना फॉरेस्ट रो एंड यू नो अबाउट द wood fruits and honey also and if you talk about the climate फर्स्ट चैप्टर आमे पढ़िले अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी आमे पढ़िचे अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी कौन कहा जाउची ना एटलीस्ट आम जोग्राफिकल एरिया रो 33% कौन रहिबा दरकार ना फॉरेस्ट रहिबा दरकार आमरो इकोलॉजिकल बैलेंस करिया पई आम इकोलॉजी को आमे बैलेंस वे रे नेबा पई बा हमरो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करिया पई बहुत एसेंशियल कौन ना 33% फॉरेस्ट तो क्लाइमेट को कंट्रोल करिबा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करिबा इकोलॉजिकल बैलेंस पई तो निहाती आवश्यक कौन ना फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इट हेल्प्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन वी कैन से वी नीड व्हाट ना conservation of forest and wildlife resources. Now we'll discuss historical background. Historical background माने आज आमे अच्छे 2025 रे जदि आमे पछो को देखिबा आमे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस कंजर्वेशन आमे कोन केते दूर आगु जाइछे कोन माइलस्टोन आमे अचीव करछे आमे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोन आमे कोन सब स्टेप नैछे सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया देन फर्स्ट दैट इज इन 1972 रे कोन हला दैट इज Indian Wildlife Protection Act कौन है ना इंट्रोड्यूस है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 तो कौन करा गला ना ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड 1972 रे विथ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गोटे लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पेसीज बा एंडेंजर्ड स्पेसीज को स्पेसीज रो फ्लोरा एंड फौना डेंजर जोन रे अछंती ओके एंड को स्पेसीज को आमे प्रोटेक्ट करबा दरकार तार गोटे लिस्ट पब्लिश हला द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज ए प्रोग्राम रो मेन थ्रस्ट कौन थिला मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला दैट इज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पेसीज बाय बैनिंग हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ यू नो दैट वर्तमान भी आमे बाघ नख पिंधिले जे आमे बाघ भली बहुत साहसी हेबा ए बिलीफ आज भी आमर अच्छी जो बहुत आम वाइल्ड लाइफ को कौन करचे ना आम हंटिंग करचे तापर आम घरे हरिणर कौन से जो हर्न सिंह ताको एबे भी आम घरे सजे रखुचे ओके बा आम कहीपर हाथी दांत तैयारी पानिया को आम एबे भी व्यवहार करिया को पसंद करचे ए जो बिलीफ आमर अच्छी ओके मना नुह से सब जिनस किसी पॉजिटिव साइंटिफिक रीजन थाई पारे जे ताहर आम बॉडी उपरे बा आम शरीर उपरे किसी पॉजिटिव इंपैक्ट थाई पारे दैट इज डिफरेंट थिंग बट ता माने नुहे जे आम तांको हत्या करी आम ए सब जिनस को व्यवहार करिबा तो ए सब पय हंटिंग पय बा आम कहि परिबा ए सब प्रोडक्ट को नेकी कोन करा जाय ना ट्रेड करा जाय जाको पोचिंग कहा जाय तो ए सब को केमती रोकिबा ए सब को रोकिबा सह जो एनिमल बा जो स्पेसीज एंडेंजर्ड कैटेगरी अच्छे जो मानकर संख्या विलुप्त प्राय हो बसलानी से मानकु प्रोटेक्ट केमती करबा दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कौन करा गला ना बहुत गुड़ाए नेशनल पार्क भी इंडिया रे कौन करा जायछि ना एस्टाब्लिश करा जायछि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एस्टाब्लिश मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
बिफोर दैट 1930s रे हमर कॉर्बेट नेशनल पार्क होचे हमर इंडिया रो फर्स्ट नेशनल पार्क बिफोर इंडिपेंडेंस पे हमर बहुत गुडे नेशनल पार्क घोषणा करा जाइतला बट आफ्टर इंडिपेंडेंस पुणी थरे ब्रिटिश समय रे डिक्लेयर करा जाइथवा नेशनल पार्क सह किछि एडिशनल नेशनल पार्क भी घोषणा करा गला बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ओके एज यू कैन सी मेनी पार्क्स existed before 1972 the real expansion and declaration of national park in a legal and protected way began from 1972 according to again this Indian Wildlife Protection Act. Then what happened? Announcement of projects to protect animal. Okay, targeted animals ने आगला जेमती हमें कहि परिबा that is tiger. Okay, tiger हो बा हंगुल हो हॉर्न राइनोसोर्स हो ओके एई भली जो पर्टिकुलर किछि टार्गेटेड स्पेसीज जहार की संख्या भारत रे प्राय विलुप्त प्राय हलानी सेई भली टार्गेटेड एनिमल्स मानू केमिति तांकर पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जाय परिबो तांकर पॉपुलेशन को केमिति इंक्रीज करा जाय परिबो ओके सेथिरा में केमिति किछि अचीवमेंट करि परिबा ए सब को टार्गेट रखी बहुत गुडा प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा गला जेंति हमें कहि परिबा प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट राइनोसोरस ओके एई भली as you can see प्रोजेक्ट टाइगर बुक रे तमर एग्जांपल अछि कोन ना प्रोजेक्ट टाइगर देखिबा प्रोजेक्ट टाइगर केबे इंट्रोड्यूस हेतला कोन as you can see this is a royal bengal tiger okay भारत बा हमर नेपाल बांग्लादेश रीजन रे ही माने बहुत देखा जानती टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब जदि हमें फॉना कथा कहबा फॉनल वेब रे टाइगर गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे. In 1973, authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. जेतोला हमें 20th century रे पहुंचले ओके जेतोला हमें 20th century रे पहुंचले आम पाखरे केते टाइगर थिले 55,000 ओके वर्तमान आम पाखरे केते अछि ओनली 1827 एठु हमें लक्ष्य कर पारथुवा जे वर्तमान टाइगर पॉपुलेशन भारत रे को भली एमान को प्रोटेक्ट करिवा दरकार कि नुह अदरवाइज आज जेमते हमें कहूचे जे डायनासोर ए भली थिला ओके आउ किछि वर्ष परे आमे हमर परपीढ़ी मानू को कहिबा जे हां टाइगर बोली ए भली गोटे थिला बिले भली देखा जाउतला बिले रो बड़ वर्षन ए भली हमें कहिबा केवल ओके सतरा में देखिबा को पाइबानी. The major threats to tiger population are numerous. You can understand from here, from this example, such as poaching for trade. मुझे कहली ओके आमे बाघ नख बाघ दांत बाघ छाल बसिकी प्राणायाम करवा ओके जप करवा ये सब बिलीफ्स एबे भी अच्छी. श्रिंकिंग हैबिटेट मीन्स गोटे हूँ आमे टाइगर डिफरेंट बॉडी पार्ट को लेकिन आम कौन करूँ ट्रेड करूँ जहाँ को पोचिंग कह जाए. श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आम फॉरेस्ट को भी एबे कौन करुचे नष्ट करुचे बिकॉज ऑफ द डिफरेस्टेशन. टाइगर नेचुरल हैबिटेट कौन होची ना श्रिंक करुचे कमीबार लगुची. डेप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पेसीज ओके सेमानंकु तो पुणी खाद्य दरकार सेमाने खाइबे कोठी जेतला हमें तांके फॉरेस्ट को हमें नष्ट करिबा बाघ काउ खाइबो तांको पे खाद्य भी तमे रखिबा दरकार. एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन ए सब जिंस होची कोन ना टाइगर पॉपुलेशन पे मेजर थ्रेट्स जहा कि कंटीन्यूअसली इंक्रीज होबार लागिची. The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. You know that जेमती कि कहली हमर एशियन कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज रे हमर जो ट्रेडिशन अछि एंड आमे टाइगर स्किन हो कि बोन्स हो बा तार बॉडी पार्ट गुडी को आमे मेडिसिनल पर्पस रे यूज करू एंड वेराइटी ऑफ अदर रीजंस पई जेहेतु अधिका व्यवहार करा जाय दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच पोचिंग हुए ट्रेडिंग हुए ओके एंड जोथि पई पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन सिचुएशन को चली गलानी ओके माने टाइगर population बहुत कमीबार लागिलानी. You can see here 55,000 to only 1827. Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, two nations became prime target for poaching and legal trading. And जहाँ कि कहली इंडिया नेपाल बांग्लादेश ए रीजन मानक ही ए टाइगर गुड़िक अधिका देखा वर्ल्ड रे जी टोटाल टाइगर देखा जाती ओके रॉयल बेंगल टाइगर जब कह 2/3 केवल देखा जाती कौटी ना इंडिया एंड दैट्स वाई समस्त प्राइम टार्गेट हूँ इंडिया एंड नेपाल. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये बुझीपार जे टाइगर
रो पॉपुलेशन केते माने को भली अवस्था अछि केते कमी छि फ्रॉम 20th century to 21st century. That is the reason because of which at the end of 20th century 1973 रे हमरो लॉन्च करा गला प्रोजेक्ट टाइगर. ओके एंड दिस कैंपेन ओके ए कैंपेन रो मेन एम थिला जे हमें केमती ए स्पेसीज को हमें कोन करि परिबा ना कंजर्व करि परिबा. टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन viewed not only an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. कोन कह जाउ जे हमें केवल टाइगर को कंजर्व करिबा ताहा नुह टाइगर को कंजर्व करिबा सह केमिति गोटे एडिक्वेट अमाउंट एडिक्वेट मैग्नीट्यूड जमती टाइगर रहिबे. ओके टाइगर पॉपुलेशन को हमें केमती इंक्रीज करबा जेतिके अछि ताको कंजर्व केवल करबानी केमती टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करबा आप रे वर्क करे कि ना दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर. You know that Corbett National Park, okay, India's first national park belongs to Uttarakhand. Then Sundarban National Park belongs to West Bengal. Then Bandhavgarh National Park belongs to Madhya Pradesh. Sariska Wildlife Sanctuary belongs to Rajasthan. Manas Tiger Reserve belongs to Assam, and Periyar it is belongs to Kerala. So these are the different national park जहाँ की टाइगर रो पॉपुलेशन को कंट्रोल करिवा पई कंजर्व करिवा पई एंड टू इंक्रीज आल्सो ए सब फॉरेस्ट रीजन को एज ए नेशनल पार्क भी घोषणा करा जाय. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ना प्रोजेक्ट टाइगर. नेक्स्ट आमे कोन डिस्कस करथले ना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन माइलस्टोन. प्रथमे कोन हेतला ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आसी एंड अकॉर्डिंग टू दैट नेशनल पार्क डिक्लेयर करा जायछि एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हेतला. If you talk about 1980 and 1986, you will surprise कि Wildlife Act 1980-1986 रे even butterfly, moths and beetles को भी कंजर्व करिया कथा कह जाय छै. ओके फ्रॉम दैट यू कैन इमेजिन जे हमें केते हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करिया पे हमें सीरियस हलेनी. ओके इठो में जानि पड़थवा इवन बटरफ्लाई, मोथ्स एंड बेटल्स को भी हमें कोन करछे ना हमें कंजर्व करिया पे ट्राई करछे. एंड फर्स्ट टाइम इन 1991 plants were also added to the list and starting with 6 species. Okay, 6 species माने कौन according to the Indian Wildlife Protection Act. Okay, प्रत्येक जो डिफरेंट एनिमल्स ने एनिमल्स मानन को 6 कैटेगरी डिवाइड कराइतला. ओके एंडेंजर्ड कैटेगरीज को मानकर एक्सटेंट कैटेगरी एही भली 6 कैटेगरी डिवाइड कराइतला जे को माने प्राय विलुप्त हो गलेनी को माने विलुप्त हेबा को आसी बसलेनी एही भली 6 कैटेगरी डिवाइड कराइतला. एंड जस्ट लाइक द Fauna in 1991 रे Flora that is plant different types of plants को भी कंजर्व करिया पे कोन करा गला ना प्लांट्स गुडी को भी 6 स्पीशीज रे कोन करा जाय छै डिवाइड करा जाय छै. 1991 रे उटे माइलस्टोन हमें डिसीजन नै छै रिगार्डिंग व्हाट ना टू कंजर्व प्लांट्स आल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करिया पे हमें कोन माइलस्टोन एजा हमें अचीव कर छै. ओके नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. आपको भी हमें कहि परिबा दैट इज हमर कंजर्वेशन मेजर अंडर रे ही हमें कंसीडर करि परिबा. ओके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करिबा पई बा सॉरी कंजर्व करिया पई हमें डिफरेंट फॉरेस्ट को भी हमें डिफरेंट टाइप्स रे डिस्ट्रीब्यूट करछे सो दैट हमें बेटर वे रे ओके बेटर मैनेजमेंट करि परिबा हमें सब रिसोर्सेज को. सो लेट्स सी Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. In India, much of the forest and wildlife resources are either owned and managed by the government through the forest department or other government departments. यदि भारत रे हमें कहिबा भारत रे हमरो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करिबारे किए सबुठु इंपोर्टेंट रोल प्ले करे दैट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंबा भारतर अन्य कोनोसी डिपार्टमेंट एमाने ही मेजर रोल प्ले करंती भारत रे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करिबारे बा कंजर्व करिबारे. एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट भारत रे हमें जहाँ भी फॉरेस्ट देखा पाऊे ताको तीनोटी कैटेगरी डिवाइड कराइते. फर्स्ट वन इज द रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज द अनक्लास फॉरेस्ट. देखो कौन से फॉरेस्ट को देखिले हमें कहि परिबानी जे ये रिजर्व फॉरेस्ट की ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की ये अनक्लास फॉरेस्ट ये बोले हमें कहि परिबानी. ओके हमें जानिबा केमती
जे जो फॉरेस्ट गुड़िक बहुत ही इंपोर्टेंट ओके आमर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रु भारत बायोडायवर्सिटी पर्सपेक्टिव रु जो फॉरेस्ट गुड़िक बहुत घंच आम कहीपर जो फॉरेस्ट आम बहुत अधिका बायोडायवर्सिटी देखा पाचे से सबू को मेनली रिजर्व फॉरेस्ट किंबा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर रे ही कौन कराई था कंसीडर कराई था जमती आम देखिपर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट Reserve forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. Reserve forest क्या होचे भारत रे जेतिकी भी forest resources पाउचे more than half फॉरेस्ट रीजन को आम कौन घोषणा करछे ना रिजर्व फॉरेस्ट कहीं ना रिजर्व फॉरेस्ट गुड़ी होची से फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट मानकरे आमे बायोडायवर्सिटी सबुठु अधिका देखा पाचे एंड फ्रॉम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट इज वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट एंड वैल्यूएबल दैट्स व्हाई आमे मोर देन हाफ ऑफ आवर फॉरेस्ट रीजन को आमे कौन डिक्लेयर कर दीचे ना रिजर्व फॉरेस्ट वंस रिजर्व फॉरेस्ट घोषणा करा गला परे से भितर ह्यूमन एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड हो जाए ओके पोचिंग बहुत कंट्रोल हो जाए मन इच्छा से फॉरेस्ट को आमे यूज करि परिबा नाही नेक्स्ट होची प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जानिबा केमती जे को फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट गवर्नमेंट रो साइट्स बा गवर्नमेंट रो डाटा इनफॉरमेशन थ्रू भी जानि परिबा बा बेले बेले कोनसी फॉरेस्ट रीजन को जदि तमे केबे जीव कंधमाल जदि जीव किंबा रायगड़ा किंबा जदि पाखापाखि कौन भी गोटे फॉरेस्ट रीजन को जीव देख बोर्ड लगी थाए जे से गुड़िक रिजर्व फॉरेस्ट कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड दिस बिलोंग्स टू दिस एरिया एभली लिखा जाए था ओके बोर्ड लगी थाए सेठू आम जापर जे ये रिजर्व फॉरेस्ट ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. These forest land are protected from any further depletion. Okay, protected forest हमें कही परिबा preserve forest अपेक्षा टिके less important and protected forest क्या को कहा जाए ना एवली forest जो forest की depletion हबारे लागिलानी एंड ताको हमें संरक्षण करिया पे ट्राई करछे एंड पाखापाखि इंडिया रो 1/3 फॉरेस्ट हमर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को बिलोंग्स करे एंड इफ यू टॉक अबाउट द बिहार हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश ओडिशा राजस्थान देन प्रायतः फॉरेस्ट आम एरिया देखा पाइबा कौन ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर अर्थ या नुहे ओडिशा राजस्थान ए रीजन मानकर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं अच्छी बट प्रायतः फॉरेस्ट ए रीजन मानकर कौन ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड इफ यू गो टू द मध्य प्रदेश देन मध्य प्रदेश रे सबुठु अधिका दैट इज 75% ऑफ द टोटल एरिया मध्य प्रदेश रा केवल कौन ना दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट नेक्स्ट अनक्लास फॉरेस्ट these are the other forest or wasteland belongs to both government and private individual and communities. If you talk about the northeastern states to जब तमे जीव northeastern state रे कोनोसी पर्सनल व्यक्तिंकर भी फॉरेस्ट थाए गोटे पर्सनल गोटे जनकर गोटे विराट बड़ फॉरेस्ट थिबो एई भली भी देखा जाए ओके फॉरेस्ट को प्राइवेट इंडिविजुअल भी ओन करंती कम्युनिटीज मानक द्वारा भी फॉरेस्ट थाए बा सेमान द्वारा फॉरेस्ट रिसोर्सेस को कौन करा जाए ना कंट्रोल करा जाए एंड गवर्नमेंट भी मेजर रोल प्ले करे इफ यू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द गुजरात देन तमे देखियो प्रायतः अनक्लास फॉरेस्ट हमें देखा पाइबा अनक्लास फॉरेस्ट मीन्स से फॉरेस्ट गुड़िक एदर गवर्नमेंट थ्रू बा प्राइवेट इंडिविजुअल बा किछि किछि फॉरेस्ट आमे कम्युनिटीज मानक द्वारा भी कौन करा जाए ना कंसेप्ट करा जाए सो इन दिस वे आमे भारत रो जहाँ भी फॉरेस्ट अच्छी से सब को आमे तीनोटी कैटेगरी डिवाइड करि परिबा दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट and the unclassed forest and reserve and protected forest both are referred as what na permanent forest okay कहीं आम कहे रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट बोली कहे कहीं ना नेचुराली ही बहुत वर्ष है आम आफरेस्टेशन कर सृष्टि करने ये नेचुराली ही को बहुत वर्ष पूर्वे बा नेचुराली ही ए फॉरेस्ट गुड़िक कौन है ना सृष्टि एंड से फॉरेस्ट गुड़िक जो बायोडायवर्सिटी अच्छी ताको थ्रू आफरेस्टेशन आम अचीव करवा वेरी डिफिकल्ट ओके आफरेस्टेशन करी आम कृत्रिम जंगल सृष्टि करी परवर्ती समय आम जंगल सृष्टि कर दे परिबा बट जो परमानेंट फॉरेस्ट बा नेचुरल फॉरेस्ट रो जो जैव विविधता अच्छी जो बायोडायवर्सिटी अच्छी ताको आम रिक्रिएट करवाटा बहुत डिफिकल्ट बा आम फ्लोरा दरकार पड़े आम क्रिएट कर दे परिबा फौना केमते आम क्रिएट करवा वंस फॉरेस्ट नष्ट होला परे जो जीवजंतु वन्यजंतु मृत्यु होउची बा से माने एक्सटेंट कैटेगरी को चली जाउछन ओके संपूर्ण विलुप्त होउछन से माने को पुनर्बार केमते क्रिएट करवा ओके तो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को आम परमानेंट फॉरेस्ट बोली आम कंसीडर करू कहीं ना बहुत वर्ष पूर्व ही ए फॉरेस्ट गोटे रही आसी आम ह्यूमन द्वारा क्रिएट करना हम
Okay, so this is all about types and distribution of forest and wildlife resources. And last part, that is the community and the conservation. This is the most important part of this chapter. Okay, very important mu कहि परबे chapter सबुठ जदि मो important question कोन कहिबे बा सबुठ जदि important concept कोन कहिबे, that is the role of community in the conservation of forest and wildlife resources. So let's see, conservation strategies are not new in our country. Okay, conservation गोटे नुआ कथा हम पे नुह. We often ignore that in India forests are also home to some traditional communities. भारत रो जदि आमे प्रायतः communities देखिबा, हमर maximum communities forest सहित जड़ित. ओके, सेमानकर कल्चरल प्रैक्टिसेस, सेमानकर फेस्टिवल, ए सब फॉरेस्ट सहित जड़ित. ओके, in some areas of India, local communities are struggling to conserve this habitat along with the government official, recognizing that only this will secure their own long term livelihood. केवल जो नुह हमर फेस्टिवल पई, केवल जो नुह हमर कल्चरल प्रैक्टिसेस पई किछि एभली भी कम्युनिटीज अछंती जो मानकर लाइवलीहुड भी संपूर्ण तांकर जीविका ही होची कोन तांकर फॉरेस्ट. तांकर जीविका से माने संपूर्ण कहा ऊपर डिपेंड करंती ना, फॉरेस्ट ऊपर डिपेंड करंती से जीविका निर्वाह पई. तो इथुरा में बुझी पारुचे जे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट बहुत हाई इंडिया रे. ओके, से कल्चरल पर्सपेक्टिव कारण हो बा से फेस्टिवल बा कोनोसी हमर कल्चरल प्रैक्टिसेस रीजन जो हो कि लाइवलीहुड पाइबा पई हो. ओके, किछ हम एग्जांपल देखिबा बुझिया पई ट्राई करिबा जे केमिति कम्युनिटीज माने भी डिफरेंट कम्युनिटीज भी केमिति बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करंती फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को कंजर्व करिबारे. फर्स्ट वन इज सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान. विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द Wildlife Protection Act. In many areas, villagers themselves are protecting habitat and explicitly rejecting the government involvement. Okay, केते बहुत बढ़िया स्टेप. ओके, आमे आम इकोलोजी को बा जदि आम एनवायरनमेंट को जदि आम कंट्रोल करिया पई चाहूचे बा एनवायरनमेंट को जदि आम सुरक्षा देबा पई चाहूचे, खाली फॉरेस्ट नो पूरा होल एनवायरनमेंट कथा कहूचे. केवल गवर्नमेंट रो रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफ नो. गवर्नमेंट रो रूल्स एंड रेगुलेशंस आमे केते अवेयर एज ए सिटीजन आमे केते ता पई दायित्ववान बा जत्नशील सी मैटर करे. एंड से जत्नशीलता देखा जाउची हमर राजस्थान रो एग्जांपल. सरिस्का टाइगर रिजर्व बिलोंग्स टू राजस्थान. विलेजर हैव फाउट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को क्लेम करी. अकॉर्डिंग टू दैट विलेजर्स माने माइनिंग एगेंस्ट वॉइस रेज करछनी. गवर्नमेंट रो इन्वॉल्वमेंट को भी से माने चांस दोनांती. निजे से माने नेचुरल हैबिटेट बा फॉरेस्ट को कोन करछनी ना कंजर्व करछनी. अनदर एग्जांपल दैट इज द विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. से माने निजे पाखापाखि 12 हेक्टर लैंड को निजे डिक्लेयर कर दैछंदी भॉइड ऑफ डाक ऑफ सेंचुरी. निजे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, निजर ओन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर क्रिएटेड. एंड अकॉर्डिंग टू दैट से माने प्रोटेक्ट करूछंती वाइल्ड लाइफ को, से माने हंटिंग को कंट्रोल करूछंती, पोचिंग को कंट्रोल करूछंती, एंड आउटसाइड एनक्रोचमेंट को टोटली चांस ही दोनांती. सो दैट इज अगेन अनदर एग्जांपल जे हमर विलेजर्स माने केते सीरियस रिगार्डिंग देयर फॉरेस्ट. फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस. दिस इज वेरी पॉपुलर. ओके, दिस इज ए जो इमेज टी अछि हमें याको चिपको मूवमेंट सहित रिलेट करि परिबा. हिमालयस रीजन रे जेते बेले डिफरेस्टेशन करा गला, जेते बेले जंगल सफा करा गला, नष्ट करा गला, ए भली ट्राइबल पर्सन्स माने गछ को जाबुड़ी धरि बसिले. सेठु ही चिपको आसकी. ओके, चिपकी के धरिबा. ओके, जाबुड़ी धरि बसिले, कुंडे धरि बसिले जे नाही जदि गछ को काटिबार अछि, जदि जंगल को सफा करिवार अछि, ताले फास्ट आमु को हत्या करो देन जंगल. ओके, जाको बहुत पॉपुलरली बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड फेमस. ओके, चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस रीजन हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफरेस्टेशन थ्रू द चिपको मूवमेंट. नॉट ओनली कि पीपल माने हिमालयस रीजन रो लोक माने डिफरेस्टेशन को कंट्रोल कले, परवर्ती समय रे एफोरेस्टेशन एक्टिविटी रे भी communities बहुत पार्टिसिपेट करछनी इन द हिमालयन रीजन. सो दिस इज अ थर्ड एग्जांपल जी कि जस्टिफाई करूची जे भारत रे कम्युनिटीज केते आगरे अछंती रिगार्डिंग व्हाट ना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस. अनदर एग्जांपल बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवधान्य. व्हाट इट मीन्स ना फार्मर एंड सम अवेयर सिटीजन्स गोटे आंदोलन चलैछंती बीच बचाओ आंदोलन, दैट इज इन तेहरी एंड नवधान्य. कौन
ना कौन कहते ना दैट इज दे हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। बीच बचाओ आंदोलन थ्रू रो तेहरी रीजन रे बा नवधान्य जो हमर आंदोलन कह जाउची कौन ना फार्मर्स सिटीजन्स जो अवेयर सिटीजन्स माने निजे कहउछन जे आमे कोनोसी सिंथेटिक केमिकल्स को यूज करिवु नाही फार्मिंग रे। ओके आमे ट्रेडिशनल मेथड्स को आमे यूज करिवु बा आमे कहि परिबा मॉडर्न केमिकल्स को आमे यूज करि परिबु अन्य कोनोसी पंथा को अवलंबन करिवु जहा द्वारा कि आमे अधिका प्रोडक्शन करि परिबु। तो so again here another example जे community okay people villagers our average citizens semane kete responsible towards our environment। the best example that is the joint forest management program of Odisha। okay Odisha re community ro participants सहित okay as you can see the program has been the formal existence since 1988। Odisha रे start hitla the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management JFM kon। Now this furnishes a good example of involving local communities in the management and restoration of degraded forest। okay मु कंधमाल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग्स करे एंड मोर मने अछि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे मु जो एरिया रे रहउतली फॉरेस्ट को माने कंजर्व करिवारे कम्युनिटीज बहुत हेल्प करते। ओके गोटे गोटे फॉरेस्ट रीजन गोटे गोटे विलेज को सपोज विलेज ए सपोज विलेज बी ये गोटे गोटे फॉरेस्ट रीजन को गोटे गोटे विलेज को दायित्व दे दिया जाए। केवल नुह जे एरिया रे फॉरेस्टर माने बुलुथुवे विलेजर्स माने भी से एरिया रे बुलुथुवे एंड तुम जदि जीव किछि इलीगल एक्टिविटीज पे गछ काटिया पे कि अन्य कोनोसी शिकार पे जदि जीव फॉरेस्टर धरिबा कथा बहुत पछ कथा से विलेजर्स माने तुमको बांधि रखिबे। कहबार अर्थ कौन ना JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहित लोकल विलेज रो गोटे टाई अप थाए एंड उभयंकर कोऑपरेशन रे उभयंकर इनिशिएटिव रे से माने ट्राई करंती फॉरेस्ट को कोन करिवारे ना कंजर्व करिवारे। तो ये फॉरेस्ट को कंजर्व करिवारे कम्युनिटीज माने काहे की हेल्प करंती ताहा से जेतु कम्युनिटीज माने बा जेतु विलेजर्स माने हेल्प करंती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ता अगेंस्ट विलेजर्स कोन पांती ना विलेजर्स मानन को अलाउ करा जाए लोकल कम्युनिटीज मानन को अलाउ करा जाए जे से माने नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करि परिबे। ओके बा किछि एभली प्रोडक्ट बा किछि एभली से माने फॉरेस्ट को एक्सेस करिवे सो दैट कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस कौन हेनी ना डिग्रेडेशन हेनी। तो गवर्नमेंट राजी होची लोकल कम्युनिटी सहित जे तुम फॉरेस्ट रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करि परिबो जेमते आमे कहि परिबे शाला गछर फूल कलेक्ट करंती महुल कलेक्ट करंती। ओके एभली बहुत गुड़ाए प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट जहाँ द्वारा कि जहाँ को कलेक्ट करबा द्वारा बा जहाँ को नहीं कि व्यवसाय करबा द्वारा फॉरेस्ट रो कोनोसी क्षय हेबनी। ओके डिग्रेडेशन हेबनी से भली प्रोडक्ट को नहीं ट्रेडिंग करबा से भली प्रोडक्ट को नहीं कि निजर जीविका निर्वाह करिया पे गवर्नमेंट अलाउ करे डिफरेंट विलेजर्स मानन को एंड विलेजर्स माने गवर्नमेंट को कोऑपरेट करंती कोन ना फॉरेस्ट रिसोर्स को मैनेज करिबारे। ए जो उभयंक कोऑपरेशन रे गोटे प्रोग्राम लॉन्च हितला जहाँ को कहा जाए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके ओडिसा स्टार्ट हितला 1988 रे। दिस इज आल्सो द अनदर एग्जांपल वेयर वी कैन से कि कम्युनिटी केते important role play करते in India regarding conservation of forest and wildlife resources. So these are the major examples, and with that another most important, that is sacred groves, a wealth of diverse and rare species. What it means ना नेचर वर्शिप आम जाने भारत प्रायतः कम्युनिटीज कौन ना नेचर को वर्शिप करते। ओके इफ यू टॉक अबाउट द ट्राइबल बहुत अधिका नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल द क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। आज नुह जदि आम ट्राइबल एरिया को जीवा माटी को माँ कही पूजा करती वृक्ष की पूजा करती ये तुम देखिपरत कि वृक्ष को पूजा करती आम भी देखा आमर भी बहुत गुड़ा फेस्टिवल अच्छे आम अँला गछ को पूजा करूँ बट गछ को पूजा करूँ आम भी विभिन्न प्रकार गछ को कौन करूँ वृक्ष को आम कौन करूँ ना पूजा करूँ। ट्राइबल बिलीफ भी आमर भी निजर ओन बिलीफ अच्छी। तो ये बिलीफ जो okay such belief have preserved several virgin forest in a pristine form called sacred groves। ए जो बिलीफ पाई ए जो कल्चरल प्रैक्टिसेस पाई कौन होची ना बहुत गुडा एरिया रो वर्जिन फॉरेस्ट मींस हमें कहि परिबा परमानेंट फॉरेस्ट और इन प्रिस्टाइन फॉर्म माने
एफोरेस्टेशन क्रिएट करा जाए नहीं प्रिस्टाइन फॉर्म मीन्स इन ओरिजिनल फॉर्म यू कैन अंडरस्टैंड कि ओरिजिनल फॉर्म बिकॉज ऑफ सच प्रैक्टिसेस एबे भी बहुत गुड़ा भारत रे एभली फॉरेस्ट अच्छी जो फॉरेस्ट गुड़िक वर्तमान भी प्रिस्टाइन फॉर्म रे अच्छी प्रिस्टाइन मीन्स ना ओरिजिनल फॉर्म रे बहुत वर्ष पूर्वे जमीती सृष्टि होता से भली फॉर्म रे अच्छा से फॉरेस्ट को वर्जिन फॉर्म रे रखा जाइए से फॉरेस्ट गुड़िकर किसी भी क्षय होनी कहीं ना से जंगल बा से फॉरेस्ट को कौन करूँ ना विश्वास करूँ से आम पूजा करूँ बहुत ट्राइबल पीपल माने ये फॉरेस्ट गुड़ी को कौन कर कंजर्व कर रखिंट कहर अर्थ हूँ जे आमर बिलीफ सिस्टम आमर कल्चरल प्रैक्टिसेस भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को कौन करिबारे ना कंजर्व करिबारे एंड एभली फॉरेस्ट गुड़ी को कौन कहा जाए ना सैक्रेड ग्रोव्स ओके द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस ओके नेक्स्ट certain societies they are what okay certain societies they are worshipping certain type of what na tree as you can see that is Chotnagpur Munda and Santal सब Chotnagpur region is मैंने worship करते का को ना महुआ एंड कदम्ब को आम एरिया रे पूजा करा जाए ओके ट्राइबल ऑफ ओडिशा कदम्ब को पूजा करते बिहार रे भी पूजा करते ओके टामरिन को भी पूजा करते मैंगो को भी पूजा करा जाए ओके मुझे जो एग्जांपल ऑलरेडी कहि सारे ओके आम तेंतुली गछ को पूजा करछे ओके अँला गछ को पूजा करछे आ द्वारा मध्य पीपल ट्री को आम पूजा करछे ओके बानियान ट्री बर गछ को भी आम पूजा करछे आ द्वारा भी आम ए जो बिलीफ्स को भी आम बहुत कौन कर पारछे ना स्पेसीज को आम बचाए रखि पारछे अनदर बहुत बढ़िया एग्जांपल एठी अछि दैट इज इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर each with its own set of traditional method of conserving and nature and its creation एट बहुत एग्जांपल अच्छी जदि आम डिफरेंट रीजन को जीवा कौन से टेम्पल एरिया को जीवा आम देखा पाइबा डिफरेंट टाइप ऑफ माकाक्स एंड लंगुड्स आम पाइबा ओके तारातारिणी जीव आम मांकड़ देखा पाइबा टेम्पल्स चारिपटे बहुत मांकड़ अच्छा कहीं एत मांकड़ देखा जाती से एरिया ना जो डिवोटीज मैंने से टेम्पल को आसती से मांकड़ मानक से प्रत्येक दिन कौन दिखती ना खाद्य दिखती जो बहुत मांकड़ देखा जाती तो यही भी ये सब प्रैक्टिसेस जोगु भी राजस्थान रे ब्लैक पोक रो बहुत भल सुरक्षा हो पार्ची ओके नीलगाई बा पीकॉक लोक मानकर एमानक प्रति कौन छुड़े रेस्पेक्ट अच्छी हत्या करते ओके से खाद्य दिखती से सेवा करती जो भी डिफरेंट स्पेसीज रो पॉपुलेशन बहुत इनक्रीज होची एंड बाम कहि परिबा सेउडा को हम कोन करि पारछे ना कंजर्व भी करि पारछे तो ए पार्ट जेहेतु हमरो सोर्स को बिलोंग्स करछे नॉट दैट मच इंपोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू बट शॉर्ट क्वेश्चन हे पारे एंड ए पार्ट हमें मेनली कहा को फोकस करे ना बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल practices and because of our belief also कि हमें इंडिया रे somehow we can our cultural practices and belief also somehow contributed to the conservation of forest and wildlife resources. So this is all about this chapter that is forest and wildlife resources बहुत ही छोटो चैप्टर टी एंड बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट एंड ए चैप्टर रे जदि आमे मेनली फोकस करिबा दीटा ही मेजर क्वेश्चन आसे गोटे होची व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व forest and wildlife resources and second one is the most important one that is the role of community in the conservation of forest and wildlife resources ए दुटा हूँ मेजर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ए दुटा पार्ट आसबार चांसेस बहुत हाई एंड ए दुटा क्वेश्चन को जब मुझे छाड़ी कहि आउ कौन क्वेश्चन हो पार देन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस एंड सेकेंड वन इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन माइलस्टोन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट टाइगर सो दिस आर द सम इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहाँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कसन जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगी देन निहाती फ्रेंड्स मान शेयर करूँ भिडियोटी को लाइक करने भूलुनी कमेंट्स भी करूँ कौटी इम्प्रूवमेंट दरकार निहाती आम तापर वर्क करूँ एंड पुणी थे एक नुआ भिडियो सहित नेक्स्ट सेसन रे आम देखा थैंक यू वेरी मच।